Hello everyone, I'm Priya from Vibrant International Academy. Today in this video lesson we are gonna continue our first chapter and that is Letter to God. I hope you have gone thoroughly through the first part of the chapter. So now let's begin with the part 2. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. And what is that? An inner sense of right and wrong. सारी रात लेंचो सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा था. उसे सिर्फ एक ही आशा थी, एक ही सोर्स था फेथ का और वो था भगवान का. और बचपन से उसने यही सीखा था कि भगवान सब कुछ देखते हैं. जो चीज़ हमारे अंदर छुपी हुई होती है वो भी भगवान को बहुत अच्छे से पता होती है. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Now, what is ox of a man? एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है. So, Lencho is very hard working man. He used to work like animals in the fields, but still he knew how to write. And so he thought something very different. And what was that different idea? Let's see. The following Sunday at daybreak. What is daybreak? Daybreak means sunrise. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो ब्लेंचो ने क्या किया? He wrote a letter to God and decided that he himself will go to the post office to post the letter. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, and so on. Pesos is the currency of many Latin American countries, as I told you in the beginning of the chapter, right? And here in this image of world map, you can see यहाँ पर जितने भी colored areas दिख रहे हैं आपको, those are those countries जहाँ पे ये currency use होती है, pesos, yes. So Lencho in his letter to God wrote that if you don't help me, we will go hungry this year. फिर उसने भगवान से 100 pesos की डिमांड की. उसने कहा मुझे दोबारा से अपने खेत में फसल उगाने के लिए और खाना खाने के लिए 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म आया था इसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब बर्बाद कर दिया. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने वो लेटर को एनवेलप में डाला, उस पर लिखा to God and kept in his pocket. He took stamp from the post office and placed a stamp on the letter and फिर उसने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब एक एम्प्लॉय था ऑफिस में जिसने लेंचो का लेटर बॉक्स में से निकाला था और वो बहुत ज़्यादा फनी फील कर रहा था कि समवन हैज़ रिटन लेटर टू गॉड. और वो इस लेटर को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास में गया, अपने बॉस के पास गया कि देखो देखो किसी इंसान ने भगवान को लेटर लिखा है. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. Now amiable means having a pleasant or friendly manner and correspondence means communication by exchange of letters. So अगर आप letters के through किसी से communicate करते हैं तो उसे correspondence भी कह सकते हैं. अब ये जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, वो बहुत ही मोटा सा फ्रेंडली सा इंसान था. जब पोस्टमैन ने उसे लेटर दिखाया कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है तो पहले तो वो भी बड़ा हंसने लगा, वो बहुत फनी फील करने लगा. लेकिन
फिर वो एकदम से सीरियस हो गया। उसने ये सोचा कि यार इस बंदे ने को कितना फेथ है, कितना विश्वास है गॉड पे कि उसने भगवान के साथ लेटर्स के थ्रू बात कर रहा है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब इस पोस्टमास्टर ने सोचा इस बंदे का विश्वास बनाए रखना चाहिए, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, और इसलिए उसने सोचा हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब उसने लेटर खोला तब उसने क्या पता लगा उसे कि अगर इस लेटर का जवाब देना चाहता है तो गुडविल, अच्छे जेस्टर्स के अलावा, इंक पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए होगा। और वो क्या था? 100 पेसोस, क्योंकि लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी वो लेटर में। But he stuck to his resolution. He asked for the money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Now resolution means decision. पोस्टमास्टर ने जब ये रियलाइज किया कि अगर उसे इस लेटर का जवाब देना है तो उसे 100 पेसोस भी देने पड़ेंगे, तो भी उसका फैसला बदला नहीं। उसने अपने एम्प्लॉय से, दोस्तों से और खुद के थोड़े पैसे इकट्ठा करने की सोची, और ये सोचा कि एक तो एक चैरिटी का काम है, हमें किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पैसे इकट्ठे करके वो भगवान की तरफ से लेंचो को देना चाहता था। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो ये चैप्टर का टाइटल है, अ लेटर टू गॉड, भगवान किसी भी रूप में आपकी मदद करने आ सकते हैं। आप ये सोचें कि भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन धरती पे जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से भी कोई भी मैसेंजर हो सकता है गॉड का, कोई भी मैसेंजर बन के आ सकता है मदद करने के लिए। एंड हियर हु इज द मैसेंजर इन द चैप्टर? मोटा सा पोस्टमास्टर, जो कि ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके इस बेचारे गरीब लेंचो की मदद करूं ताकि भगवान से इसका विश्वास खत्म ना हो। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Little more than half means 100 का हाफ कितना होता है? 50. 50 से थोड़ा सा ज़्यादा उसने इकट्ठा किया, एंड अब इस पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल जैसा था। सो जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी बेचारे सैलरी ड्रॉ करते थे, और जो उसके फ्रेंड्स थे तो वो भी ये चैरिटी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई द पोस्टमास्टर वॉज नॉट एबल टू गेदर 100 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with the letter containing only a single word as the signature God. अब पोस्टमास्टर ने ये पैसे एनवलप में डाले और साथ ही में एक चिट्ठी का कागज लिया और उस पर सिग्नेचर किया गॉड का, और उसने सील करके लेंचो को एड्रेस कर दिया। लेंचो के लिए लेटर तैयार था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। He came a bit earlier than usual because he was very eager to know whether his letter has reached to God or not. क्या भगवान के साइड से कोई जवाब आया है? It was the postmaster himself to handle the letter to him, while the postmaster, who has performed a good deed, looked on from his office, experiencing the contentment means satisfaction. अब जो पोस्टमैन है जिसने लेंचो का लेटर पोस्ट बॉक्स में निकाला, उसी ने ये लेटर लेंचो को दिया, और जो पोस्टमास्टर है वो बहुत ही तसल्ली के साथ देख रहा था। He was feeling satisfied, contented, as he had done a good job. Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested.
अब जब लेंचो ने देखा एनवलप में जो पैसे हैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। यानी उसे इतना ज़्यादा भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था, फेथ था गॉड पे, उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। बट वेन ही काउंटेड द मनी एट दैट टाइम व्हाट ही सॉ 100 पैसों से कम है एंड ही बिकेम वेरी एंग्री। उसे लगा जब मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे तो उन्होंने मुझे कम पैसे क्यों दिए, उन्होंने पूरे पैसे देने चाहिए थे, उन्हें पूरे पैसे मुझे देने चाहिए थे, उन्होंने कम दिए मुझे। इससे क्या पता लग रहा है कि लेंचो को अगर थोड़ी भी मदद मिली तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो पूरे के पूरे पैसे चाहता है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब लेंचो ने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया, उसने एक पेपर मांगा and one pen and he started writing a letter. So again he was writing one more letter to God. और जब वो लेटर लिख रहा था तब उसने सोचा, पढ़ रहा था कि उस लेटर में क्या लिखा है। कौन सोच रहा था ये? पोस्ट मास्टर सोच रहा था, इसलिए वो अपनी आईब्रोज ऊपर करके ये देखे जा रहा था लेंचो को। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he linked and then affixed to the envelope with the brow on his fist. जब उसने लेटर लिख लिया तब उसने एनवलप में डाला और स्टैंप लगाकर उसे बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Crooks means cheats. तो जैसे ही लेंचो ने इस लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है तब पोस्टमास्टर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि लेंचो ने लेटर में क्या लिखा। अब हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि लेंचो ने लेटर में थैंक्स लिखा हो गॉड को। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि भगवान ने उसकी मदद की। बट व्हेन ही ओपन द लेटर इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेटर में लिखा है कि आपने जो मुझे पैसे दिए, जो पैसे मुझे भेजे हैं उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिल पाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लेंचो ये सोच रहा है कि कुछ पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। लेंचो ये सोच रहा हो कि गॉड ने जो लेंचो को 100 पैसों की भेजे थे उसमें से पोस्ट ऑफिस में से एनवलप में से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, तभी उसे सिर्फ 70 पैसों से मिले हैं। क्योंकि लेंचो लेटर में लिख रहा है कि आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उनमें से सिर्फ मुझे 70 पैसों ही मिल पाए हैं, बाकी के पैसे भी आप मुझे भेज दो, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही वो कहते हैं कि लेटर में मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करने वाले हैं वो चीट्स है, धोखेबाज है, हो सकता है वो पैसे अपने पास ही रख ले। तो यहाँ क्या पता लग रहा है कि हमें कि ऑल्दो पोस्ट मास्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया, एक चैरिटी का काम किया, लेकिन उसे नतीजा क्या मिला? नतीजे में जो लेंचो है ये तो यही सोच रहा है कि वो धोखेबाज है, पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज चीट्स है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड पे है, वो इंसानों पे तो बिल्कुल फेथ रख ही नहीं रहा, उसे इंसानों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान ही यहाँ पर भगवान के रूप में उसकी मदद कर रहे हैं, वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा है, वो उन्हें चीट समझ रहा है, उन्हें धोखेबाज समझ रहा है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope it was helpful. Well, this is me, Priya, signing off. Bye-bye.